off. So, welcome to our Kapi Poa session. This is season 2, and this is episode 2. And the entire series of this Kapi Poa session is part of the Inimicum initiative, and we call this as Ittifaq series. So, Ittifaq means coincidence. And welcome everybody to the show. And today, our guest speaker is Poonam Virmani. Poonam is a very close friend of mine, and she's a chartered accountant by qualification. She's a nature lover, and she's an ardent reader as well as a very curious learner as well. So yeah, so let me hand it over to Poonam to give a brief introduction about her as well. Good evening to all. Thanks for such a wonderful introduction, Smita, and thanks for having me on the show. I'm really honored that you invited me on the show. Yeah, I'm glad you came because I know you are involved in a lot of work, and I wanted you to be part of the show and to share your own experience as well. So Poonam, let me start with something to know more about you. So I know you as a as my I mean as someone with whom I've studied CA during from my CA days as well, but we had a gap of few years and then we met again. So yeah, so so I want to know about your life mantra because I know you lead a very simplistic life, and I'm awe of your life because you inspire me to live a life of simplicity basically. So give us your the guru mantra or the life mantra you follow in life. It's not a guru mantra only. Smita, you are also live a simple life. And honestly, you are an example of the quote, simple living, high thinking. And you are a true example of this. And what I believe for myself is that we keep on evolving, but for the time being, my life mantra is be satisfied with what you have, but never be satisfied with what you are. So I am very happy with all the things. I am happy, be it my friends, degree, all the material things, and in terms of relationship, parents, friends, all the things. But there is a constant or the urge, constant need to improve myself. So work constantly on yourself. This is my life mantra. And this journey will go to the end of your life, till the end of my life. You So, constantly work. Poonam, I know that you stay in NCR and you work, and along with work, you do a lot of things, and you contribute to a lot of people's life. Basically, you serve others. And how are you able to do that? If you can give us some tips or guidance so that including me, and the youngsters who are watching this show, can get inspired and look at possibilities of contributing towards others' life. Others' life, if I talk, because I was born in a religious family, जहाँ पर वो सारे religious scriptures पढ़े जाते हैं. And I am a Mm-hmm. management student. I am an MBA. So I am a management student. So I always correlate between the religion and the management concepts. Most of the time I find that कि दोनों एक जैसे ही तो है, लेकिन उसमें लिखने का तरीका अलग है. अगर मैं उसकी बात करूँ तो अगर हमारे जो शास्त्र कहते हैं वो ये कहते हैं you can help others only when you have certain qualities because अगर आपके पास चपाती है तो चपाती दे सकते हो, राइस है तो राइस दे सकते हो, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो किसी को कुछ नहीं दे सकते. So to give others you have to first constantly work on yourself. So जितना आप elevated होगे उतना दोगे और जितना दोगे आप elevated होते जाओगे. है. So basically things हैं जैसे हम हेल्प कर सकते हैं या आप सर्व या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. इन हिंदी इट इज कॉल्ड मन से, वाणी से और कर्म से. ठीक है. मन, वाणी, कर्म से. और कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स इसको ऐसे बोलते हैं कि हाईएस्ट इज स्पिरिचुअल गिविंग, नॉलेज गिविंग एंड देन द फिजिकल गिविंग व्हिच इंक्लूड्स द फाइनेंशियल गिविंग. सो अगर हम सिंपल बात करें मन, वचन और अपने कर्म से हेल्प करने की, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे अगर सपोज यू आर वेरी जनरस and you spend 10,000 every month just to feed the poor boys or girls or people on the roadside, or maybe in your lifetime you spend a crore or 2 crore. On the second side, अगर आपने रोड पे बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, जब हम ट्रैफिक में रेड लाइट पर कभी अटक जाते हैं, वो फूल्स लेके खड़े होते हैं या कुछ स्मॉल टॉयज बेच रहे होते हैं या फिर वो उल्टा पलटी कर रहे होते हैं कि आपको दिखाने के लिए कुछ मनी मिल जाए. सो सेकेंड काइंड ऑफ हेल्प इज कि आप उनकी एजुकेशन को स्पॉन्सर कर दो. उससे क्या होगा कि एक फैमिली जो बहुत से जनरेशन से ऐसे रोड पर घुमा रही है बच्चों को, उनकी एजुकेशन नहीं भी हो पा रही है, उसकी अगर एक बच्चे की एजुकेशन हो गई
तो शायद वो बच्चा पढ़ जाएगा और वो काम नहीं करेगा, और जब वो काम नहीं करेगा तो शायद उसकी फैमिली के बाकी लोग भी एलिवेटेड होंगे, और एलिवेशन होने के साथ साथ जब वो बच्चा ग्रो करेगा, हम्म, उसके बच्चे हों, तो एटलीस्ट पूरी जनरेशन को ये काम नहीं करना पड़ेगा, तो पूरी नेक्स्ट जनरेशन एब्सोल्युटली। जो है उसको सेव हो गई। और थर्ड है कि जो है आप स्पिरिचुअली का मतलब आपके गुड किसी को हैबिट्स आप सिखा दीजिए, एंड उसको बोलते हैं कि अगर हम टिपिकली रिलीजन की बात करें तो वो उसके जन्म रीबर्थ में भी एवरी बर्थ में काम आएंगे। सो इसीलिए है कि जो हम मन से सेवा करते हैं, मन से जो हम कंट्रीब्यूट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द हाईएस्ट डिग्री। सेकंड हाईएस्ट की अभी जो हमने बात की कि अगर आप उसके एजुकेट कर दोगे तो ना सिर्फ उसकी लाइफ बेटर होगी, बल्कि जितने भी उसकी फैमिली है, आने वाली जनरेशन है, उन सबकी लाइफ बेटर हो जाएगी। और थर्ड कि आप कितना रुपया खर्च कर दो, लेकिन यू विल फीड देम वन टाइम, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन दे फील हंग्री दे डिपेंड ऑन समथिंग। सो तीन है, बहुत सारी चीजें बहुत सारी बुक्स में ऑलरेडी लिखी हुई है, लेकिन मैं छोटी छोटी चीजों की बात करना चाहूंगी हर एक सेगमेंट में, जिसको हम अपनी डेली लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मन से कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मन से कैसे सेवा कर एब्सोल्युटली। सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत छोटा सा काम है, हम 3 बार खाना खाते हैं एटलीस्ट, और 3 बार खाना खाते से अगर अगर हम छोटा छोटा भी कुछ करें तो स्लाइटली सा चेंज हो सकता है। सो खाना खाते समय हमें 10 सेकेंड्स कैसे डिवोट करने हैं, दैट आई वुड लाइक टू शेयर। कि फर्स्ट, हमें वो खाना मिला है, शायद बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा है तो शायद उतनी क्वांटिटी में नहीं मिल रहा, अगर उतनी क्वांटिटी में भी मिल रहा है तो न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशियस मिल रहा है तो उनकी चॉइस का नहीं मिल रहा, और हम उन सबसे ऊपर हैं, वी आर एनी हाउ प्रिविलेज्ड। सो जस्ट थैंक गॉड बिफोर हैविंग फूड कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे गॉड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये हमें भोजन दिया। दूसरा कि आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो, जस्ट थैंक करो उन सब लोगों का जो फूड आपकी प्लेट तक लेकर आए हैं। जैसे उसमें इंक्लूड्स द होल चेन, मे बी योर मदर कुड फर्स्ट, देन वो जो वेजिटेबल वेंडर है
Smita, can you hear me now? I think there is a connectivity issue. Yeah, there was a connectivity issue. So no worries. You were talking about about gratitude. So you can begin with that point basically. Yes. So हमें बहुत मन से किसी के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है. जो हमारे साउंड ट्रैवल करते हैं, हमारी जो थॉट्स होती हैं वो ट्रैवल करती हैं. सो अगर हम उन लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड भेजेंगे तो शायद उनके पास भी एक काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन पहुंचेगा. गॉड को तो थैंक करना, गॉड जब ये सुनता है कि एटलीस्ट ये बच्चा मेरे लिए थैंक कर रहा है जो मैंने दिया है, देन अगर हम अपने पेरेंट्स को भी थैंक करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है. थर्ड थिंग कि एटलीस्ट 2 सेकेंड्स के लिए ये प्रे की जाए कि जिनको कोई सबको खाना मिले, कोई भी ना खाने से वंचित ना रहे. इन सबको करने में हार्डली आपको 10 to 20 seconds लगेंगे, and that should be silent prayers. So 10 to 20 seconds, 3 minutes in a day. Maximum you have to spend 1 minute in a day to start with. Second thing, I would suggest that I started with a lot of people. 2 minutes prayer for others whom you don't know. वो उनके लिए अनकंडीशनल प्रेयर होनी चाहिए लोगों के लिए. जैसे अगर हम देखते हैं हमारे चारों कितना कुछ हो रहा है, किसी के लव वन चले गए, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई हॉस्पिटल में बहुत दिन पड़ा है, किसी को किसी बैड चीज की आदत पड़ गई है, नशे की या किसी भी चीज की पड़ गई है, कोई अपनी लाइफ से परेशान है, सुसाइड करना चाहता है, किसी के बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. सो मे बी जब हम प्रेयर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रेयर्स का मतलब कि आप कुछ दे रहे, कुछ अपनी वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो. और अगर हम कोई मंत्र चैंट करते हैं तो मंत्र वाज क्रिएटेड बाय समवन एल्स, और समटाइम्स तो हमें पता भी नहीं होता कि उसका मीनिंग क्या है. वी जस्ट कीप ऑन चैंटिंग, इमोशंस नहीं आते. लेकिन ये 2 मिनट या 1 मिनट की प्रेयर जो आपका मन कहता है आप कैसे करें. फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जाम्पल कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे खुदा, आज जितने भी लोग इस दुनिया से गए हैं और जितने गए हैं उनके परिवार वाले बहुत दुखी होंगे, उन सबको हिम्मत मिले, शक्ति मिले, हौसला मिले कि वो इस सिचुएशन को पार कर सकें. और जो भी सोल गई है उस डिपार्टेड सोल को शांति मिले, वो अपने परिवार के लिए दुखी ना हो, उसको शांति मिले. अगेन सिमिलरली यू कैन प्रे फॉर एनीवन. यू कैन सी अराउंड यू कि लोग किस किस चीज से परेशान हैं, उनके लिए आप प्रे कर सकते हो. प्रेयर के लिए कोई चैंटिंग मत यूज करिए. अपने जो वर्ड्स हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, आप उसके थ्रू जो है प्रेयर करिए. सिर्फ 2 मिनट प्रेयर कभी भी में भी आप जब गॉड को नमस्ते करते हैं मॉर्निंग में या नहाते समय, कुछ भी काम करते समय, जस्ट 2 मिनट. सो सिर्फ 3 मिनट आपको पर डे निकालने हैं. 3 मिनट का मतलब we have around 16 hours in a day and 50 minutes, 90 minutes in a day roughly. And 960 minutes में से सिर्फ 3 minutes आप जो है निकाल रहे हैं गुड वाइब्रेशंस देने के लिए. और बिलीव मी कि अगर जब आप भेजते हैं ये गुड वाइब्रेशंस तो सबसे पहले जो बेनिफिट होता है ना वो आपको ही होता है. आपको जो इंटरनल फील होगा, दैट्स अमेजिंग. दिस इज रिवॉल्व की मन से सेवा करना. मन से सेवा करना मतलब अनकंडीशनली लोगों के लिए प्रेयर करना, उनको ग्रैटिट्यूड भेजना. सेकंड कैटेगरी, सेकंड टाइप यू कैन से इज वाचा या वाणी से जो आप सेवा करते हैं. सो अगर मैं बोलूं कि मैं किसी ऐसे घर में पैदा हुई हूँ जहाँ पे मेरे पेरेंट्स स्वीपिंग का काम करते हैं, रोड क्लीनिंग का काम करते हैं, या किसी के घर पे जाके उसका हाउस होल्ड काम करते हैं, मैं उस परिवार में पैदा हुई हूँ, तो मैं जहाँ पे जाऊंगी तो मुझे एक फीलिंग होगी कि हाँ एटलीस्ट कोई मेरे काम के लिए मुझे प्रॉपरली पे करे, और एटलीस्ट पे करे या ना करे, जितना भी करे वो मुझसे रिस्पेक्टफुली बात करे. Absolutely, respect is important. We are on the other side, so at least use the respectful words for all those people who are not worthily paid for their works and their works are not rewarded. Just एक दिन के लिए सोच के देखिए कि 1 महीने के लिए आपके घर में कूड़ा उठाने वाला नहीं आया तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? वो कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा और वो काम जो वो कर रहा है वो आपको करना पड़ेगा. नाली साफ करने वाला नहीं आया, नहीं की उसने, तो किसको करना पड़ेगा 1 महीने? You can't leave it like this.
बीमारी होगी अल्टीमेटली आपको ही करना पड़ेगा। सो उसके काम की भी रिस्पेक्ट है। सो एटलीस्ट आप to begin with, just use a respectful word for all those people who are not handsomely paid or who are regarded as not the upper category of work they are doing. उन सबके लिए respectful word use करिए। So not उनके सामने से उनको अच्छा फील हुआ। एक तो अच्छा फील होना बहुत सारी मनी होने से बहुत 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 अच्छा होता है। So उन सब के लिए बेटर वर्ड यूज करिए। जो आपके घर में मेड आती है उसको आप कैसे ट्रीट करते, आप दीदी कह के ट्रीट करते हो या उसका नाम लेके आप कैसे ट्रीट करते हो। सो आप वाणी से जब अपने बोलते हो तो बोलने में आपका क्या रिफ्लेक्ट होता है, वो अगेन आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बनता है। एंड वो आप सही यूज करिए। और सिर्फ ना उसके पीछे सामने से बल्कि पीछे से भी, जब वो पर्सन नहीं है तो भी उसके बारे में उतना ही रिस्पेक्टफुली बात करिए जब उसके सामने से करते हो। आई नो कि घर के लोगों के लिए तो शायद सब करते होंगे, लेकिन उन सब लोगों के लिए भी रेस्पेक्टफुल वर्ड यूज करिए। ये छोटी छोटी चीजें ना शायद फाउंडेशन होती हैं। जो बहुत बड़ी चीजें अगर हम सीख लेते हैं और छोटी चीजें नहीं आती ना, तो कहीं ना कहीं वो ट्रू पर्सनालिटी हमारी नहीं आती है, वो ट्रू करेक्टर, ट्रू ह्यूमन बीइंग हम नहीं बनते हैं। वाणी से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हम शायद मॉर्निंग में वो सब मैसेजेस भेजते हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, अपने सारे फ्रेंड्स को। हमें अपने घर के सारे लोगों को, चाहे हमसे छोटे हैं चाहे वो हमसे बड़े हैं, हम उनको ग्रीट करें। ग्रीट यू कैन डू इन एनी वे, इन योर ओन वे। दैट इज गुड मॉर्निंग मामा, हैव अ ग्रेट डे। That with that feeling you can greet to your mom, you can greet to your father, or you can greet to your children as well. Because अगर आप बड़ों के साथ बात करोगे तो उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है, उनको एक अच्छा फील होता है। और कुछ ना कुछ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शायद उनको स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन उनको अच्छा फील होगा। और बच्चों के अंदर वो हैबिट होगी कि नेक्स्ट टाइम उनको भी करना है, ऐसे सबके साथ करना है। सो ये कर सकते हैं। गुड चीजें जो अच्छे आपने सीखी हैं यहीं से, वो आपको दूसरों को भी शेयर करनी है। सो द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज शेयरिंग। अगर आप खुद ज्यादा सीखना चाहते हो, इम्प्रूव करना चाहते हो, तो अगेन आपको वो छोटी छोटी चीजें शेयर करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अच्छी चीज मैं सीखती हूँ शायद किसी ना किसी से शेयर कर दी, तो जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो शायद मेरी जो क्लैरिटी है और बेटर हो जाती है। तो वो शेयर करिए, वो आप अपनी वाणी से ही कर सकते हैं। हम कहते हैं कि कर्म से, कर्म का मतलब कि हम फिजिकली या फाइनेंशियली किसी की कुछ हेल्प कर सकते हैं फिजिकली। सो आई वुड से कि सबसे पहले अपनी अपनी फैमिली की एंड देन सोसाइटी पे जाइए। तो सबसे पहले बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती है घर में जो आप नहीं करते हो, एंड कोई पर्टिकुलर पर्सन देखता है। सो जिस एक्टिविटी में आज तक घर की एक्टिविटी में आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया है, आप उस एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करो। जैसे मॉम है, मॉम 3 बार खाना बनाती है, 7 days इन अ वीक बनाती है, ठीक है, और वो टाइम नॉन स्टॉप बनाती है। सो आप एटलीस्ट ड्यूरिंग द वीकेंड वन डे वन टाइम मील में आप उनकी हेल्प करवाओ, ठीक है। करना हम बाहर जाके सेवा करने से बेटर है कि हम जो घर के लोग हैं, हमारे जो लाइफ गॉड हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हम उनके साथ सर्व करें, उनके साथ बेटर करें। सो अगर आप ऑलरेडी हेल्प करते हो मामा की, तो कोई और एक्टिविटी जैसे प्लांट्स के अंदर पानी देना, वो जनरली ट्रेडिशनली मामा पापा ही देते हैं, या कोई एक हमारा फिक्स होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो ले सकते हैं। या मार्केट का काम, कुछ भी जो आपको लगता है कि आप नहीं करते हो, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करोगे तो किसी को फैमिली में अच्छा लगेगा, वो आप फिजिकल एक्टिविटी आप करिए। एंड और भी थर्ड, एंड विच इज people usually say as contribute, they much understand in that term only कि दूसरों की जाके हेल्प करना, उसको भी थोड़ा सा एटलीस्ट वन एक्टिविटी इन अ वीक वी कैन डू। लाइक कि घर की छत पर आप जो बर्ड्स के लिए पॉट रख दीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए और बर्ड्स आएंगे। अब वो आपकी लोन नहीं है, हेल्प आपको उन लोगों की करनी है जो अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकते, राइट। कि आप किसी ऐसे पर्सन की हेल्प कर रहे हैं जिसके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, तो हेल्प नहीं होती है। बच्चे हैं, अपनी हेल्प नहीं कर सकते हैं, ओल्ड एज लोग हैं, अपनी हेल्प नहीं कर सकते हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो अपनी हेल्प नहीं कर सकते हैं, उनको नहीं है। एंड गॉड मेड यू दैट कैपेबल, यू कैन हेल्प देम। सो कंट्रीब्यूट इन अ
very small way to begin with that you can do. घर की छत पे पानी रख दीजिए, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू से कि वो पॉट को क्लीन जरूर करिए. मैंने देखा है बहुत सारे लोग वो घर की छत पर पॉट तो रख देते हैं लेकिन उसको क्लीन नहीं करते, और वो डर्टी वाटर अगर बर्ड्स पिएंगे तो उनको भी बीमारी होगी. तो वी आर नॉट डूइंग गुड डीड, हम उल्टा कुछ खराब कर रहे हैं. तो हमें ऐसा भी नहीं करना है. क्लीन करिए, पार्क में जाके आप उनको उनके लिए कुछ दाना रखाइए, स्ट्रीट डॉग्स को कुछ फीड कर दीजिए, या फिर आप बर्ड्स ले लीजिए, उनको फ्लाई कर दीजिए. केज में बंद होते हैं, आप उनको फ्लाई कर दीजिए. या फिर आप किसी भी वे में कोई जा रहा है मजदूर, आप मैंने देखा है बहुत सारे लोग की बहुत सारे जाल होते हैं, दे कैन नॉट कैरी ऑल द वेट, सो लोग उनकी हेल्प करते हैं कि हाँ चलते हुए किसी की हेल्प कर दी. किसी के पाँव में चप्पल नहीं है, चप्पल दिलवा दी, व्हाटएवर थिंग. यू फील लाइक कि हाँ कि किसी की लाइफ में छोटा सा कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं, और थोड़ा 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 once in a week at least आप प्लान करिए. जब आप प्लान करोगे ना कि करना है, so there is a quote of Robin Sharma, things happen twice in life, so first in mind and second in action. So जब आप माइंड में सोचोगे कि हाँ करना है, और then फिर आप तभी आप उसको कर पाओगे. So to begin with, these small things can help, otherwise there is a laundry list. So honestly. That's great to know. So, पूनम छोटी छोटी चीजें मतलब हम नजरअंदाज करते हैं. So I'll give you an example. My father used to say कि आप किसी को मदद करने जा रहे हो तो देखो कि वो क्यों छोटे बच्चे जैसे क्यों कर रहे हैं स्ट्रीट पे काम. That because उनको पेट भरना है अपना. उनको खाना देते हो 3 टाइम का, आप इंश्योर करते हो कि उनको 3 टाइम का खाना मिल जाएगा, तो वो क्या करेंगे उस टाइम का. तब बिकॉज बेसिकली इफ यू कैन इंश्योर, सो सबसे पहले अन्नदान कहते हैं हमारे यहाँ पे, कहते हैं अन्नदान. अन्नदान इज द बेस्ट दान, बिकॉज एक बार पेट भर जाता है तो वो बस बोल देता है, उससे ज्यादा तो वो कुछ खा नहीं सकता. सो एक बार आप उसके अन्न का इंतजाम कर दो कहीं से भी, एंड देन यू लुक एट देयर प्रॉब्लम्स. हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स तो खाने की होती है, वो सुलझ जाएगी तो बाकी के लिए रास्ते खुली जाते हैं. और जैसे हम लोग हैं, जैसे हम पढ़ाई कर बचपन में हम जब पढ़ते थे, सो 2 ही चीज पापा बोलते थे, एक तो एजुकेशन और हेल्थ. ये 2 चीज अगर आपके पास है तो सब कुछ रिक्रिएट किया जा सकता है. बाकी सब मटेरियलिस्टिक है, कोई तो लेके कुछ हमें जाना नहीं है, लेके हम आए नहीं है. यही चीज है जिसको हम जितना बांटेंगे, मतलब खुद हेल्दी रहेंगे, खुद अच्छा खाएंगे, तो वैसे ही हम खुद सेहतमंद रहेंगे तो लोग हमें देख के हमसे इंस्पायर होंगे. और अगर हम पढ़े लिखे रहेंगे तो हम अपना ज्ञान शेयर कर सकते हैं. विल फाइंड ways to contribute. Basically that's how you can do it. एक better जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बेटर सोचते थे, हम अपने आगे जनरेशन के लिए अच्छा सोचते हैं, वैसे ही हम दुनिया मतलब दूसरों के लिए भी सोचा जा सकता है. बिकॉज आई हैव सीन मेरे जो आज मेरे फादर के जो बॉस है, मेरे पापा लास्ट मतलब 60 इयर्स के थे जब ही जॉइंड एन एनजीओ विच इज ए मिशनरी कॉलेज. जहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे दे हैड अ स्कूल, दे आल्सो हैव अ स्कूल, एंड दे आल्सो हैड अभी मेरे ख्याल से थोड़ा कम हो गया उनका, दे आल्सो हैड एन ऑर्फनेज. और उनका ऑर्फनेज बड़ा डिफरेंट हुआ करता था, बाकी ऑर्फनेजेस की तरह नहीं. दे यूज्ड टू पिक अप स्ट्रीट किड्स, और स्ट्रीट किड्स को लेके ऑर्फनेज में लाना बहुत मुश्किल है. उनको पहले मैनर्स बेसिक, हम जैसे बेसिक कहते हैं, खाना पीना, बाथरूम जाना, सोना, इट इज सच अ बेसिक थिंग टू डू. उनको वो भी नहीं पता. उनको पता नहीं कि कब खाना बंद करना है, कहाँ पे टॉयलेट के लिए जाना है, कब सोना है, कब क्या करना है, नहीं समझ, कोई बताने वाला नहीं है. जो कि हम बहुत ग्रांटेड लेते हैं अपनी लाइफ में. हमारी जैसे हम जहाँ हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे कोई घर है, रोटी कपड़ा मकान, हम कहते हैं एवरीथिंग इज प्रिविलेज, और हम उसमें भी कमी ढूंढते हैं, हमें ये नहीं है, हमें वो नहीं है. बट उन बच्चों को देखो जिनको ये सब चीजें कभी नसीब ही नहीं हुई है, दे जस्ट ऑन स्ट्रीट, दे डू नॉट नो व्हाट टू डू. सफाई क्या होती है, कपड़े क्या होते हैं, दे डोंट नो. सो मैंने उन लोगों को एटिकेट सिखाना, बेसिक सिखाना, और उनको एक लेवल पे लेकर आना, एजुकेशन देना, दैट इज व्हाट आई सॉ इन दैट स्कूल, व्हिच इज बहुत कम लोग करते हैं, व्हिच इज अ टफ जॉब. बिकॉज एक टाइम के बाद वो आपको छोड़, क्योंकि स्ट्रीट किड्स आप उनको लेके आते हो, या अबंडेंट किड्स जो कि खो गए हैं, उनको बच्चों को लेकर आता है, थोड़ी देर उनको सिखा के थोड़े टाइम के बाद वो चले जाएंगे, क्योंकि उनकी अपनी फैमिली मिल जाएगी. या जब उनको पुलिस स्टेशन से जब आके पिकअप करके लेके चले जाते हैं कि ना इनके पेरेंट्स मिल गए या गुमशुदा थे, बच्चों को वो लेके चले आते हैं, तो आपने जो तैयारी करी है दैट्स गॉन. बच्चों के साथ अब आगे उनकी लाइफ में क्या होगा पता नहीं. बट ये निस्वार्थ सेवा जो लोग करते हैं, मैं बताने से देखिए अच्छा लगता है कि विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न, कि वो बच्चे आपके साथ 10 साल रहेंगे, 50-15 साल रहेंगे, नहीं पता है लोगों को. आए हैं गुमशुदा केंद्र से, आए हैं स्ट्रीट से उठा के बच्चे आए हैं, कुछ जैसे मर्जी, अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, उनको सबको इकट्ठा करके एक तरीके से उनको एक लेवल तक लाते हैं, एंड फिर उन्हें वापस भेज दिया जाता है. सो दैट्स व्हाट आई हैव सीन. सो काफी लोग अलग अलग तरीके से सेवा करते हैं, एंड प्रॉब्लम
is back. See, Poonam, I was talking about life skills. So next, probably topic is about life skills for you as well. So I want, so Poonam, मैं ये बता रही थी अपने audience को basically कि निमित्तम मैंने कब शुरू किया and निमित्तम का initiative के बारे में बता रही थी. So जैसे I've told you in one of few of my calls as well कि ये एक नया social entrepreneur journey मैंने शुरू किया है. It's nothing but to impart life skill workshop for youngsters basically so that they can cope up with the hardships in life. सबको life में मतलब लाइफ से हार नहीं माननी चाहिए. Just basic education से भी important one of the thing is life skills. So we should prepare ourselves so that whether it's problem solving, whether it's empathy, self awareness, decision making, these are all simple life skills which are very important. And that is what from a Nimitin perspective I'm looking at imparting through workshops, through different people who can go and deliver these lessons to various maybe youngsters. I what I define here is school kids, your college going people, so that they are the ones who need this information the most. And let me ask you this question. So what do you understand by life skill, and why it is important as according to you? Smita, first of all, many congratulations and all the best for this great initiative. Great initiative. Thanks. So, life skill, life skill is like the foundation. Other basic skills to live happy and make others' life happy. These are the foundation. जैसे आप बहुत डिग्री ले लो लेकिन आपके अंदर वो बेसिक स्किल नहीं है तो किसी ना किसी स्टेज ऑफ लाइफ पे जाकर आप फंबल अप हो जाओगे, आपको डिसीजन लेना नहीं आएगा. तो डिग्री होगी कैसे बिहेव करना है, किसी प्रॉब्लम में आ जाओ तो उससे कैसे बाहर निकलना है, हमारा बिहेवियर टूवर्ड्स दूसरों के कैसा होना चाहिए वो आपको नहीं पता होगा. सो लाइफ स्किल्स आर like the foundation of the one's personality or the one's character that one should have. So life skills are the foundation, I would say, of the very life. So what is one of the important one of the skill which you feel among the life skill which is very important according to you? Life skills, honestly, Smita, when I studied, I was not aware of this life skill. वो सिर्फ इतना पता था कि एग्जाम क्लियर करना है ये क्या है, उसके बीच में मेंटल ट्रॉमा आता था, उसको कैसे हैंडल करना है. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज व्हाट द लाइफ स्किल इज. देयर आर मेनी, लेकिन जो मुझे पर्सनली फील होता है कि होनी चाहिए उसमें से आई वुड लाइक टू लिस्ट मे बी नॉट 2 or 3. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट इज द सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस इज द वन कि जिसमें आपको पता है कि आपकी पोटेंशियल्स कहाँ पर हैं, आपकी वर्केबल्स कहाँ पर हैं, आपकी लिमिटेशंस क्या हैं और आपको क्या करना है, क्यों करना है. वो सेल्फ अवेयरनेस. क्योंकि हमें दूसरे के बारे में सब कुछ पता था. इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ कि सब कुछ पता था लेकिन मुझे क्या करना है, क्यों करना है, मेरी लिमिटेशंस क्या है, मैं और क्या कर सकती हूँ, वो क्लैरिटी नहीं थी. और जब तक वो क्लैरिटी नहीं होती है आप क्लियर नहीं सोच सकते हो, तो क्लियर डिसीजन भी नहीं ले सकते हो. So, self-awareness is a foundational life skill, and that leads to, for example, कि अगर मुझे पता है मेरी लिमिटेशन क्या है, मेरे पास 24 आवर्स है, मैं 4 चीजें करना चाहती हूँ, अकाउंटिंग करना चाहती हूँ, ड्राइंग करना चाहती हूँ, डांसिंग करना चाहती हूँ और स्केचिंग करना चाहती हूँ. मुझे दूसरों को देख के ऐसा लगता है नहीं म्यूजिक भी सीख लेना चाहिए. ठीक है. सो अर्लियर आई वाज दैट कि जो अच्छा लगता था उसके पीछे भाग गए, लेकिन मुझे मेरी लिमिटेशंस पता है कि 24 आवर्स हैं, इसमें से मैं अगर इस काम में करूंगी तो मेरा इंटरेस्ट इसमें ज्यादा है तो मुझे इस पे फोकस करना चाहिए और ये जो है मुझे बात के लिए रखना है. सो जब आप अपने बारे में ज्यादा जानते हो तो आपको क्लैरिटी आती है थॉट्स में, और जब क्लैरिटी थॉट्स में आती है तब आप बेटर डिसीजन ले सकते हो, बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकते हो. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ अवेयरनेस. सेकंड, आई वुड say that's behavior, how to behave or your attitude towards others and for self. शायद मैनेजमेंट की बुक्स में या बहुत सारी बुक्स में ये तो देखा है कि इंटरपर्सनल स्किल क्या होता है, दूसरों से कैसे बिहेव करना है, कि ऑफिस में ऐसे फोरम मेंटेन करके रखना है, हेल्पर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, या कोई सीनियर है तो कैसे बिहेव करना है. ओके, इट्स गुड टू लर्न, वो भी हमें पता होना चाहिए. बट equally important part
which people usually miss are that's how you behave with yourself. जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा. I was one of that kind of person कि अगर किसी से कुछ गलती हो जाती थी, so I forget it. भूल जाती थी, शायद अभी बोल दिया, it's okay. लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हो जाती थी, तो शायद वो मैं अपने आप को माफ नहीं करती रहती थी. वो मेरे माइंड में चलता रहता था, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, मतलब कि वो चलता रहता था. और एक मेंटल काइंड ऑफ पूरी मेंटली टॉर्चर किया हुआ था खुद को. लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये सीखा कि जैसा हमारा बिहेवियर दूसरों के साथ अच्छा होना चाहिए, हमारा खुद के साथ भी बिहेवियर अच्छा होना चाहिए. कि अपने आप को भी एक ह्यूमन बीइंग समझो. आप दूसरों की गलती पर उन्हें बोल देते हो कि ना ये ह्यूमन बीइंग है, तभी तो काम करोगे, गलती होगी. तो खुद भी तो ये सीखो कि आपने काम किया, गलती हुई, कोई बात नहीं, लेकिन उससे सीख के आगे बढ़ो. इम्पोर्टेंटली कि नर्वस हो जाती थी मैं बहुत ज्यादा जल्दी. इन टर्म्स ऑफ किसी ने कुछ कह दिया, नर्वस हो गई, क्योंकि मुझे तब ये नहीं पता था हाउ टू बिहेव विद माई सेल्फ. यानी कि मुझे अपने आप से क्या बोलना है कि ठीक है, इसने जो बोला है ठीक है, लेकिन मेरा पॉइंट भी ठीक है. सो हम अपने आप से जो बात करनी है, अपने आप से जो टॉक करनी है, वो कैसे पॉजिटिव करनी है, अपने आप को क्या मैसेजिंग देनी है, कौन सी किसी की बात नहीं लेनी है, किस एक्सटेंट तक लेनी है, वो अपने साथ बिहेव करना तो शायद क्या कहते हैं पता ही नहीं था. आई वॉज वेरी इग्नोरेंट. सो हाउ टू बिहेव विद योरसेल्फ, एटीट्यूड towards yourself is very important. And of course, the how to behave with others are equally important. But the later part, I think that behave with myself was missing in me, which I learned over the period of time. Third thing is the focus and the concentration. Focus and concentration is the foundation and the base. कि जब हम स्टूडेंट होते हैं या फिर हम किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ में काम करते हैं, तो जो भी हम काम कर रहे हैं सिर्फ उस काम की तरफ ध्यान देना, इसको फोकस या कॉन्सेंट्रेशन. जब हम ऐसे करते हैं तो हमारे जो माइंड की कैपेसिटी डेवलप होती है, और सिर्फ हम एक काम नहीं कर सकते, हम बहुत सारे मल्टीपल काम कर सकते हैं. सो अभी क्या हो गया है, जो मुझे स्टिल नीड टू वर्क बैक, कि अभी काम करते समय एक व्हाट्सएप आया, देखा, रिप्लाई किया, अगेन काम कर रही हूँ, किसी का कॉल आया, अटेंड किया. सो बहुत सारी चीजें multiple things we are handling. So it's good to handle multiple things, but it's important to handle one thing at a time. Just pay wholehearted attention to this, close the one thing, then pick up the next things. तो वो मेरा थोड़ा सा डाउन साइड में चला गया है, इनफैक्ट कॉन्सेंट्रेशन वाला. So I need to work with, and it's beautifully said by someone. The beautiful time with the thing is that beautiful thing with the time is you cannot waste it in advance. You cannot waste it in advance. So अगर आपने जो कर दिया, full stop लगाओ, next day very moment you can just bring back to that enthusiasm, or you can work on that skill. So अभी भी ठीक है उसके ऊपर. And over the skills which I personally experience are very important. I'm still working on this ability to ask questions. As a student, we must be curious. That's curious. Then again, a famous quote: "Who asks is a fool for a minute, and who don't ask is a fool for lifetime." आपको पता ही नहीं होगा कि कैसे करते हैं, कि आप इस शर्म में रहते हो कि हाँ मैंने पूछ लिया तो लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे. हाँ वो समझेंगे उस मिनट के लिए, लेकिन पूरी लाइफ में जब भी आप काम करोगे आपको बेसिक नहीं पता होगा, आप स्टक हो जाओगे. जब हम स्कूल में जाते हैं, टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछते तो शायद क्या कहते हैं, वो आगे का वो फाउंडेशन नहीं पता होता, क्लियर नहीं होता, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, फिर एग्जाम में वो क्रैमिंग, ज्यादा टाइम वेस्ट करना एंड ऑल दिस थिंग वो होती है. ऑफिस में भी अगर हमें इंस्ट्रक्शंस की क्लैरिटी नहीं है, अगर हम सबऑर्डिनेट हैं, तो फिर हम गलत काम करेंगे, फिर बॉस डांटेगा, फिर दोबारा काम करना पड़ेगा. अगर हम बॉस हैं किसी के और इंस्ट्रक्शन सही नहीं दे रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं कि उसको समझ में आया है कि नहीं आया, सिर्फ हमने अज्यूम कर लिया कि हाँ कि उसको समझ में आ गया, बोल के खत्म कर दिया, देन अगेन इट वोंट वर्क. सो क्वेश्चन पूछना, एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चन इज वेरी important in the fundamental skills. Right. There are a lot many. Would you like me to discuss more around this? There are many.
Correct. I understand. अभी चलो मैं एक चीज और बता दे. So this time, this season 2, I have named it as Ittifaq series, which means coincidence in life. So do you believe in coincidence? Yes, very coincidence. The very coincidence is meeting with you. I think Absolutely. It's one of the one best things that has happened as a we coincidence. studied, we studied together. We studied together We and studied together. coincidentally, it, I think probably in I campus, met. I think yeah, sorry. so around 2000 or something, I think I left coming to the institute or the Bharat Scouts Guides ka building. And then after that, I was not in touch. And probably after so many years, maybe when I started taking a metro to reach my office, I mean 2012, 2000, I don't remember it. 2017 की बात है. मतलब 15-16 साल के बाद I met you basically. So that is the time Yes, when I started with traveling. I used to travel. I started just traveling, going to the mountains for treks and all. That is the time I met you. Because that's the time when I started using a metro because I wanted to be more active so that I can become much more fitter. So that's one of the reasons. And probably I bumped into you. It was a major coincidence to meet somebody after 14, 15 years basically. And still not changed. So I was so surprised to see you without any change. It's the same simple girl who used to sit in the library with a book एंड वही स्माइल के साथ वहां बैठी हुई है और एंड अगेन देयर टू हेल्प मी आउट कि अरे तुम दूर से आई हो प्लीज सिट डाउन. सो ये नहीं कि खुद भी दूर से आई है तो उसको भी आगे जाना है जर्नी पे बैठे रहना चाहिए. शी इज ऑफरिंग अ सीट टू मी. सो दैट्स हाउ आवर सेकंड इनिंग ऑफ फ्रेंडशिप स्टार्टेड बेसिकली राइट. And तब मुझे नहीं पता था कि she's a ardent reader also. Probably I got to know that she reads a lot of books. She goes to all those book exhibitions, gets her books from all over the world, I think. And the best thing is she gifts books to other people as well. And she's a quote person, so whenever you talk to her, she will be there with some quote or the other. So I don't remember quotes by heart, kisne kya kaha, although I write it in my diary and all. But I have seen you use quotes बहुत ज़्यादा extensively. I've seen you in my conversation with you. So yeah, I'm very happy that that coincidence happened and I met you. Best thing to happen in life. but coincidence means the second inning is even more bounding on the glued one. In the first inning, we just studied for maybe a couple of hours or maybe in an hour or two in a day. Yeah, But this inning, the second inning is more wonderful. That's we are sharing a lot of the life skills. We are sharing a lot of learnings with each other. That's more beautiful. The second inning and the second coincidence. Smita, I would so like yeah. to share one incident. What so what happened? Um, during the CA course only, मैं सुबह 6 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाती थी मॉर्निंग में 6 बजे क्योंकि मुझे वॉल वाली सीट चाहिए होती थी. फेसिंग वॉल वाली सीट चाहिए होती थी. बीच में डिस्टरबेंस होता था. तो मैं क्या कहती थी एक दिन क्या कहते वो 6 बजे पहुंचने के लिए घर से 5:30. Okay, yeah, you carry on, carry on. I just want to show you something. So चला बेटा था. So one day what happened कि मैंने बस बोर्ड की और बस बोर्ड करने के बाद मैंने रियलाइज किया that I am only in the bus. And second stop पे again कोई भी उसमें किसी को बोर्ड नहीं करने दिया गया बस. एंड थर्ड स्टॉप पर भी ऐसा हुआ. आई वॉज की अंदर से दिल धक 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 कर रहा था कि मैं सिर्फ अकेली लड़की वो भी एक बस में और कोई नहीं है इस बस में पैसेंजर. व्हाट्स द रीजन. लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन माइंड. सो लास्ट स्टॉप पर जब मैं उतरी तो वहां पर उस स्टॉप पर ज्यादा लोग हुआ करते थे. फ्यू लेडीज एंड फ्यू बॉयज. देन व्हाट हैपेंड they allowed to board in the ladies but not to the gents. The driver said it's a ladies special. That is why gents are not allowed in gents are not allowed in the bus. So वो जो सारा दुख दुख था मेरा में चल रहा था वो सब अपनी इनोसेंस पर मुझे हंसी आ रही थी कि मैंने बोर्ड करते समय क्यों नहीं नोटिस किया. बस बोर्ड करते समय क्यों नहीं नोटिस किया. So yeah. So do you remember this quote? देखो, keep following your dreams. All the best. Can you see this? Yes, my Do you God. remember this? So Now probably I I was able to follow my dreams because she was the first one who gave me this because I was looking at resigning from my office, corporate job, taking a pause from my corporate life, going to my sabbatical, and everybody was like इतनी अच्छी job, इतना सब कुछ छोड़ के क्यों करना है? Side by side weekend पे travel कर ले, छुट्टी लेके travel कर ले. And you were probably the first one saying, जो मन करते करो स्मिता, it doesn't matter. Remember,
those conversation, metro conversations basically. So it helps. So you never know आप किससे कब मिलते हो और आपकी डायरेक्शन, आपकी लाइफ में वो क्या कंट्रीब्यूट कर जाता है. So probably this is there. मेरे पीछे बुलेटिन बोर्ड है मेरा जो, उसके में हमेशा ये रहता है. It's always there. So yeah. So yeah, and coming back to next segment. So अभी जैसे I know you are a reader and you love books. So मैं थोड़े quotes पूछने वाली हूँ तुम्हारे favorite authors में से. अब तुम्हें बताना है कि ये किसने लिखा है. Okay? Ready for the round? Fun round, last segment. थोड़ा मस्ती, हाँ? After the serious discussion of life skills and all. ठीक है. So पहला है don't overthink. Overthink leads to negative thoughts. किसने कहा है? Probably you I read their usually books. remember the quote, but not the author. Okay. Swami Vivekananda. Maybe there is a, I think, connectivity issue. I cannot hear you properly, Smita. Okay. So is it better? I mean, मेरे यहाँ पे तो connectivity issue नहीं दिख रहा है. तुम्हारे यहाँ हो रहा है अभी? अभी better है? Can you hear me? हाँ, अभी better है. Okay, net तो चल रहा है. हाँ, net is there. I'm just checking the net. Net तो है. So quote ये था कि don't overthink. Overthinking leads to negative thoughts. That's Swami Vivekananda. अगला quote, okay. So one of your favorite author that I can tell you, because of you I got introduced to this particular author, although I've not read his books. Okay, I've already given you the hint. Okay. Stop being a prisoner of past, become the architect of your future. Can't hear you properly. There is a, I think, connectivity Stop issue. Can you please Okay, because I can hear you. दोबारा बोलती हूँ. Stop being a prisoner of life, of past, become the architect of your future. जो सुबह सुबह उठा देते हैं आपको. Yes, absolutely. I remember the 5 AM Club and the monk who sold the Ferrari and all those books. Probably you are the one who introduced me to Robin Sharma's books, basically. Okay. Agla wala is another. Yeah, that's right. That's right. So agla wala. Okay. The next quote. Dream, dream, dream. Why? Dreams transform into thoughts and thoughts result in action. Connectivity issue again. I don't know. Let's wait for her to come. आवाज आ रही है अभी? Connectivity issue हो रहा है शायद. स्मिता वॉइस ही नहीं आ रही है मुझे आपकी. This. हाँ, एक बार फिर से. Dream, dream, dream. Dreams transform into thoughts and thoughts results into action. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. Absolutely correct. और अभी तो हमने 3 कर लिया. Last one, okay? I just have 4 for you. I think I can ask you the 5th one also. Let me check. If you try to please everyone, you will please no one. It is impossible to lead your life for others' happiness. She's my guess. She's my favorite person actually. So I really look up to her. She's Sudha Murthy. This quote is by Sudha Murthy. Another one, 5th one also I'll check with you. I don't know whether you read Paula Colla's books and all. So, you already told Paula. So last one, collect moments, not things. So that is my favorite quote. When I travel. So I have a habit of buying stuff. Huh? आवाज आ रही है? I think बीच में कट हो स्मिता. There is a connectivity issue, I think. So I don't think मेरे यहाँ पे connectivity issues नहीं है because I can see दोनों icons यहाँ पे. मोबाइल वाला भी चल रहा है, दूसरा वाला भी चल रहा है. So is it better? What's your favorite book? My favorite book? There are many favorite books. है बहुत सारे हैं. So I love reading Paula Colla's book as well. There are a lot of books.
सो लिस्ट बहुत बड़ी है। मुझे एलिजाबेथ गिलबर्ट की बुक्स पसंद है, सुधा मूर्ति की बुक्स पसंद है, एपीजे की बुक्स, आई थिंक वन ऑफ देम यू हैव सेंट इट अक्रॉस टू मी, वो मुझे बहुत पसंद है। सो मेनी बुक्स आर देयर बेसिकली, and not only leadership books, plus also there are other travel books as well which I like to read. And there is something very recently I had seen Ajay Jain's book as well. It's very small books on that. And I mean, if you, I mean, there are a lot many books which I've been reading. So another favorite is my editor who's done editing for my book, Nadira Auntie. Her book is very good. That is Winnowing Waves, and it talks about Kerala and a Muslim community and all. It's so nice. It's very nice. There's another one, Kamla Das. She's also a very different kind of a writer. I like her work as well. So I mean, I like books on food nutrition as well. So अगर मैं शायद ये सब इस फील्ड में नहीं होती, शायद मैं न्यूट्रिशनिस्ट होती, आई सपोज, बिकॉज मैं खाने के बारे में कुछ ज्यादा ही बोलती हूँ, और मुझे आई एम अ फूडी बेसिकली। सो मैं बहुत खाना खाती हूँ, वो अलग बात है, और मैं मोटी भी हूँ, उसके हिसाब से मैं काफी मोटी भी हूँ, दो मैं हेल्दी हेल्दी बोलती रहती हूँ, बट आई लव ईटिंग Well, एवरीथिंग। सो आई लव रुचिता's book as well. I'm a big fan of Rujita Divekar, and if I start so talking Rajat, about books, kabhi hogi nahi khatam. so why, just because of you, I read two books of Rajita Divakar. The one, The 12-Week Fitness Habit, and The Superfoods of India. And I really learned a lot. Like I changed my lifestyle just because of this book to some extent. I'm really So there is benefited from Brené Brown, Brené Brown की books हैं, काफी सारी, गौर गोपाल दास की book which I was reading recently. So right now I have a book which I'm reading is of APJ Kalam's book, I think, which I think you had sent across to me. So I'm reading that book as well right now. So yeah, we काफी सारी, और the thing is I read two books at a time. I don't know, but I'm like that. Morning में I read something, and at the night time I read something फिक्शनल, जिसमें कहानियां वहानियां हो, तो सपने में कहानियां आए, मे बी दैट इज द रीजन मुझे वैसी स्टोरीज पढ़ना अच्छा लगता है। मॉर्निंग में आई प्रोबब्ली माइट रीड अ लीडरशिप बुक्स और समथिंग लाइक दैट, एंड आई प्रेफरेबली नाउ आई स्टार्टेड वाचिंग लॉट ऑफ वीडियोस या ऑडियो, आई लिसनिंग टू ऑडियो बुक्स एज वेल। एक मिशेल ओबामा की बुक बहुत अच्छी है, दिस ऑटोबायोग्राफी बाय प्रियंका चोपड़ा, इट इज अ गुड वन। अनु अग्रवाल के ऊपर एक बुक है, दैट इज अ गुड वन। सो आई मीन, सो या मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है। सो इफ यू गुड क्या कहते हैं, गुड रीड्स करके ऐप है, सो आई हैव लिस्टेड ऑल माय बुक्स व्हिच आई वांट टू रीड वहां पे, सो यू कैन एक्चुअली सी द लिस्ट व्हिच आई हैव रेड एंड व्हिच आई एम प्लानिंग टू रीड एज वेल। every time you ask a lot of या व्हाट other people. Why don't why don't you keep a episode where we ask question from you? Okay, I can do that. Maybe probably end of the season 2. That's a good suggestion. A lot of people have asked me that I should be asked questions. So yeah, we can do that. Maybe at the end of the season 2, last episode, we can keep donate. I mean, keep it for questions with me. So probably I can answer all the questions people have for me. So I think again Poonam's network has an issue today. So probably. So hope you guys had a great time listening to our conversation. So it's about two friends as well. Okay, I don't know what happened. Let me connect back to Poonam. Let's see if she can join or not. So hi Sapna. So my uncle is also there. His name is Gobi, and we call him Gobi Man. Hello Gobi Man. Hope you're enjoying our conversation. So let me again check where is Poonam. She's invited. I don't know why she's not able to join again. So yeah, probably she's back.
Why there's a connectivity issue at her end? Yeah, she's back now. So some connectivity issues. So, so I was just saying hi to Sapna. Sapna is one of my PG mate. I met her in Bangalore. She's joined the show, so I said hi to her. And my mama is also part of the show, so I was just saying hi to him as well. So hope these guys are enjoying our conversation. So I probably don't see any questions as of now. So yeah, we are at the end of our episode 2, and I think I had a great time talking to you, Poonam, hearing about all your small step which we need to take to contribute to others. I mean, how we can make a contribution in other people's life, in our own life, specifically the gratitude, man, Vani, and with your deeds you can help people basically. Thanks for coming on the show. बहुत मजा आया मुझे तुमसे बात करके काफी टाइम के बाद मैं तुम्हारी शक्ल देख रही हूँ नॉर्मली वी स्पीक ओवर द फोन ओनली ऑडियो कॉल्स होता है ऐसे वीडियो कॉल तो हम करते नहीं है so, बहुत मजा आया एंड अगेन इट्स अ न्यू जर्नी वी आर स्टार्टिंग अगेन with the life skill journey as well. So hope you become part of our workshops as well and play an important role in contributing towards our life skill workshop for other people as well. And Smita, you always ask, invite others to tell about themselves. Why don't you Hmm. keep us at this? Where we ask you, we dwell more about you, we know more about you. So let's have Yeah, a yeah, sure, session. sure. We'll do that. So you can, I'll keep a last episode ka slot for asking questions for me with me. So you can, I'll keep that session. I'll invite whoever wants to be the host at that point of time and can be the host and ask me questions, whatever they want to. So let this session, let this season 2 end. At the end, we'll do it. Thanks, Smita. Thanks a lot for inviting me. Honestly, I don't want to come on a public and that to a live forum, but you that inspired me and asked me to join at least. And thanks, Smita. It's a really wonderful time here to talk to you. And I wish you all the best for your great initiatives. May God bless you. And God bless all those people who want to do wonderful things for in life, not for self and those for others. All the best here. Yeah. Thank you, Poonam, and all the best wishes for you for whatever you're doing towards the society and making a difference in other people's life. Thanks, everyone who was watching the show. Hope you had a great time. Sorry for the technical glitches we had, but that's part and parcel when you do an Insta live session. These things do happen. So have a great weekend, and we'll catch up in the next episode, which is episode 3, with another interesting personality. See you next Saturday. Bye till then. Take care, everyone. Bye. Take care. Bye.